Hi folks, I hope I'm audible. Now we will start in just 2 minutes. Let everyone join since I had sent the message regarding the class. I guess just an hour before this. So I will just start in 5 minutes. Till then, certain information what I'm going to cover today in today's class and what will be our objective. So and apart from that, if you just in case if some of your friends want to join, they can just join in. The link is there on the inter college coordination group of 2024 batch econ students. So just in case किसी को join करना, you can send the link. I have my host control, so you can only send your chats. I can see your chats on the other screen, and if you have anything else, you can just type it out. For just for minimizing the disturbance, what I've done is I've not given the controls for unmuting yourself or sharing your videos or screen. So let's start another 2 minutes. But the objective of the day is, let me just share my screen. Oh, I've already shared it. Now, so if you see the first unit, folks, the first unit, you have this chapter by Narendra Jadhav. This particular reading is quite a significant reading. It talks about money multipliers, so हम बात करेंगे. Yes, I will try to upload it on YouTube, but because of paucity of time, I'm not sure whether when I'll be able to do it, but I'll try to do it as soon as possible. Again, it's preferred that you watch the live lecture over the recordings. So first of all, and this lecture is going to be in English, so there are a lot of comments on YouTube. Please teach in Hindi as well. Hindi guys or English guys says please teach in English. So but I'll try to be bilingual. Why I have picked this chapter, and then follow up we will also do this. But ये उसी के अंदर कवर भी हो जाता है. So if you do this particular reading properly, actually your RBI report for 1998 is also kind of covered. But yes, still you should go through it. Now why am I picking this particular topic is because when it comes to any competitive examination, be it let's yeah so let's take the case of say civil services examination. Whether you have economics optional or you're studying it in GS, in both cases this concept of money multiplier is extremely important. And what I've seen is लोग रट के चले जाते हैं concept कि what is money multiplier, कि C increase होगा या अगर cash increase हो रहा है या अगर technology increase हो रही है, तो they try to mug it up. So that is where they get a lot of questions wrong, and every year you see 2 questions from the monetary economics part. So if you do a kind of regression analysis of UPSC, you will see every year there are 2 questions on monetary economics, and they are conceptual in nature. A lot of students are not able, in fact economics students are not able to do it because they have not studied it properly. So I'm not just talking about the economics optional, I'm just talking about GS. Then even in econ optional, or you talk about RBI grade B, or you talk about say IES, in all these 3 exams monetary economics is extremely important. For RBI and IES it's also important at the interview stage, but for economics optional, again this is an integral portion, and I've seen a lot of students just mugging up stuff and not able to solve. If I have given a miracle on this, people will not be able to solve it. So that is where it's important. Then even in your CUET PG entrance, you will find this, not your Ashokas and not your ISIs, but your CUET PG of the general. You can find a couple of questions on monetary economics, and that's where it's important. And then your UGC net. By the way, people who are going to go for masters, please see that the CSAS portal is open. Yesterday the joint dean had introduced the CSAS portal for PG. Please make sure that you do not miss your deadlines. And you have to fill the form of each university separately. If you're applying for JNU, if you're applying for Ambedkar, if you're applying for DU, so these are separate forms. So make sure you don't mug them, or you just don't mug up the entire, or you just don't mess up the entire process. Then UGC net, in your first year of your masters you can give this examination. In fact, what you might not know, if you want to do a PhD, then UGC net is compulsory because that forms the entrance route for PhD now.
So this is a very important examination. You can give it after first year of your masters, whether you do it from IGNOU or you do it from Delhi School or Ashoka, whatever you do, you can do it. So there also you will see this particular concept. So that's why I've picked this concept, and it's an important one. Now let's move on to this particular reading. What I've also done is I'm going to send you some notes with respect to this. I've also attached a copy of Blanchard here. Now Blanchard is one of the best books that I've seen when it comes to your monetary economics. So that's why what I have done is I've simultaneously, just a second, where is my document? Yes. So what I've done is I've simultaneously given you this particular document. You might have studied this in your graduation while studying maybe macro 2 or macro 1, but here the concept of money multiplier is very very elegantly explained. Perhaps it's not as elegant when it comes to your this thing, your the reading that we have N. Jadhav. So let's start with N. Jadhav, and then we will keep flowing between. We will have that discussion between these two things. Now let me before even going through the reading, let me explain you certain process which will help you understand what is this money multiplier. So okay, so I'm going to explain you this concept of money multiplier. But before explaining you the concept of money multiplier through your reading, let us understand this concept. Now as I said, it will be bilingual. Try to understand this. Now suppose हमारे पास we have some amount of money with us, say 100 rupees. You have 100 rupees with you right now in your pocket. Now where does this 100 rupee go? This 100 rupees, so think of it as your demand for money. ये आपका demand for money है. Now where does this 100 rupee go? This 100 rupees will either be demanded by you in form of cash, which is nothing but currency. So this 100 rupees will be demanded by you in terms of currency. So you want to keep some currency in your pocket. Say let's say 70% of what you have, you want to keep it for your transactional purpose, for any precautionary purpose. This 70 rupees you're keeping it here, and then you put the rest of the money in your bank account. You put the rest of the money in your bank account, and that is 30 rupees. Now of this 30 rupees, this 30 rupees can further divided when we talk about narrow money or broad money. This can be further divided into your demand deposits as well as your time deposits. So time deposit is something like your FD, which can be only be matured after a particular point of time, and demand deposits like your saving bank account, which can easily be withdrawable और कभी भी withdrawable. तो ये बेसिकली आपके पास बैंक के अंदर दो तरीके के डिपॉजिट्स हैं. आपने ये 70 रुपीज़ अपने पास कैश में रखा है और 30 रुपीज़ बैंक के पास रखा है. Now let's complicate the story, or let's move ahead with the story. Now what happens is that of this 30 rupees, there is a mandate by the central bank. Now what is this mandate by the central bank? The mandate by the central bank is that of this 30 rupees you cannot lend everything. You have to keep certain amount as reserves in form of cash. So think of this CRR. You might have heard about this term called CRR. So you have to keep some amount of cash, some amount of precaution with you, and these were, by the way, introduced. You'll read in this particular series something called Basel norms. So Basel 1 and 2 and 3 talk about this how much of money should a bank have with itself to basically secure itself against any kind of runs, any kinds of risk. So Basel 3 जो latest आया था, Basel 1 से शुरू हुआ था. So अब बैंक जो है, अगर वो 30 रुपीज़ उसके पास आए, if it lends out this 30 rupees, then there is no skin of the bank. तो बीच में अगर कोई पैसे खा के भी भाग जाए तो बैंक को क्या, उसने 30 रुपीज़ लिए, 30 रुपीज़ आगे उसने लेंड कर दिए. सो इट वुड हैव दैट मॉरल हैजर्ड. इट विल नॉट हैव दिस स्किन इन द गेम कि उसका भी पैसा लूज हो रहा है. सो इट विल नॉट बी it does not have that moral skin. So basically एक moral hazard है. तो इसीलिए बेसल नॉर्म्स के थ्रू हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि बैंक्स को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा. नाउ एज फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, लेट्स कॉल दैट कि अच्छा कुछ थीटा अमाउंट है. मैं अभी थीटा यूज़ कर रहा हूँ, बाद में इसको आप आर भी यूज़ कर सकते हो. इस थीटा की जगह इसको लिख सकते हो आर, कि कुछ रिजर्व रेशो है. अब ब्लैंचार्ट देखोगे तो उसके अंदर थीटा यूज़ करा हुआ है, तो डजेंट मैटर. सो बेसिकली इस 30 रुपीज़ का कुछ अमाउंट बैंक को अपने पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा. बाकी अमाउंट जो है वो लेंड कर सकते. सपोज हमने कहा कि आर जो है वो 10% है.
दैट मीन्स इस बैंक को अपने जो रिजर्व्स हैं वो 3 रुपीज़ रखने पड़ेंगे, और बाकी 27 रुपीज़ इट कैन ईजिली लेंड आउट टू एनीवन। तो वो लैंड आउट आगे करेगा, फिर वो लैंड आउट, सपोज इसने इस 27 रुपये का क्या हुआ, इसने मुझे गाड़ी खरीदनी थी, इफ़ आई वांटेड टू बाय अ कार, मैं इस बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे पैसा दे दो, आई वांट टू बाय दिस कार, उसने मुझे 27 रुपीज़ दे दिए। अब मैं वो 27 रुपीज़ अपने पास नहीं रखना, मैंने कार कंपनी को दिए कि मुझे ये कार चाहिए, 27 रुपीज़ ये रख लो, फिर कार कंपनी अपने अकाउंट में रखेगी 27 रुपीज़। अब वो 27 रुपीज़ जब उसने अपने अकाउंट में रखे तो उसका 2.7 रुपीज़ जो है बैंक अपने पास रिजर्व में रखेगा, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो आगे करेगा। सो ये साइकिल चलेगा इस तरीके से, दिस साइकिल विल गो ऑन। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस साइकिल इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसी तरीके से चलता है। वी विल गो कम टू दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट, बट ये जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो 3 रुपीज़ है, अब दिस इज द डिमांड फॉर रिजर्व्स। बेसिकली बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो आरबीआई से बोलेंगे मुझे कैश चाहिए, मुझे आई नीड सम प्रिंटेड कैश, आई नीड सम मनी विद मी, बिकॉज आई नीड टू कीप इन माई कॉफर्स दीज 3 रुपीज़। एंड पब्लिक कितना मांग रही है? पब्लिक कह रही है कि मुझे 70 रुपीज़ चाहिए। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इफ़ यू टॉक अबाउट, देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। डिमांड फॉर हाई पावर्ड मनी कितना है कि मनी जो है, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हाई पावर्ड, व्हाई वी कॉल्ड इट एज हाई पावर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। तो देर इज दिस डिमांड फॉर मनी, और वो क्या है? वो है C+R, कि आरबीआई से कितना पैसा लोग मांग रहे हैं। पैसा कौन मांग रहे हैं? पब्लिक पैसा मांग रही है, एंड मनी इज ऑल्सो बीइंग बास्ड बाय बैंक्स, बिकॉज उसको रिजर्व्स के फॉर्म में रखना है। एंड दिस इज नथिंग बट आपका, आई कैन, इफ दिस इज मनी डिमांड, कैन आई से दिस इज C इंटू MD। बेसिकली MD मेरा 100 रुपये था, और ये C जो है वो क्या है? 0.7 है, तो 70 रुपये ये हो गए। प्लस अगर मेरे पास जितना भी पैसा बचा, कितना पैसा मेरे पास बचा? मेरे पास 1 माइनस C बचा, 30%, इंटू जो मेरा मनी डिमांड था वो, और इंटू सम, मैंने थीटा कह दिया, इसको थीटा ले लिया कि वो 10% है। सो ये जो है, तो ये 70 रुपये, और ये कितना हुआ? ये अब आपका 30% हो गया, ये 100 रुपये हो गया, तो बेसिकली दिस इज 30 रुपीज़, और उसका 10%, तो 3 रुपीज़। सो माई डिमांड फॉर अभी मैं इसको हाई पावर्ड मनी बोल रहा हूँ कि डिमांड फॉर मनी इज बेसिकली, आरबीआई से जो डिमांड फॉर मनी है वो 73 रुपीज़ की है। ठीक है, सो ये हमें एक चीज़ पता चल गई कि बॉस, डिमांड फॉर मनी जो है आपकी, जो HD है, जिसको हम HD बोल रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट C इंटू MD प्लस थीटा इंटू 1 माइनस C इंटू MD। मैं अभी उसके ऊपर भी आऊँगा, आई विल कवर योर नरेंद्र यादव एज वेल, और उसको इसी टर्म्स में समझा दूंगा। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, वेरी इजी, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। और बेसिकली ये पैसा क्या कर रहा है? ये पैसा, दिस इज द डिमांड फॉर मनी विच इज 73 रुपीज़, बट मार्केट के अंदर जो एक्चुअली में डिमांड फॉर मनी था, ये तो हाई पावर्ड मनी है, एक्चुअली जो डिमांड फॉर मनी था वो 100 रुपये था, तो सप्लाई ऑफ मनी भी 100 रुपये होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। सो दैट मीन्स द सप्लाई ऑफ मनी शुड बी 100 रुपीज़। सो somehow what is happening is this C into MD plus theta into 1 minus C into MD is becoming the money supply as well. Now this is 100, तो बेसिकली हम क्या करें, अगर मैं मनी डिमांड को कॉमन निकाल लूँ तो C प्लस थीटा इंटू 1 माइनस C इंटू मनी डिमांड इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 73 रुपीज़ है, ये बेसिकली मनी डिमांड मेरी मनी डिमांड 100 रुपये है, उससे मैं जब ये 0.73 ये जो जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना होगा? देखो, ये होगा 0.7, और ये होगा, अगर आप देखोगे तो 0.3 इंटू 0.1, तो 0.73 इंटू 100 विल बी इक्वल टू दिस, ये चीज़। So I can write, basically I can convert all of this, and I can say that my money is equal to, can I say my money is equal to 1 plus, क्योंकि आपका मनी डिमांड वॉज इक्वल टू मनी सप्लाई, यहाँ पर ये जो टर्म था, इफ़ यू सी दिस टर्म, यहाँ वाले से मैं ले रहा हूँ, आई कैन से दिस मनी जो मार्केट में है इज इक्वल टू H इंटू, डिनोमिनेटर में ले गया, C प्लस थीटा 1 माइनस C। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, मार्केट के अंदर जो 100 रुपये हैं,
ठीक है, मार्केट के अंदर ये जो 100 रुपये हैं ये कहाँ से आए, 73 रुपीज़ तो मार्केट के अंदर ही थे, ठीक है, 73 रुपीज़ तो ये तो मार्केट के अंदर थे, 70 जो डिमांड फॉर हाई पावर्ड मनी करा था और जो 3 हाई पावर्ड मनी का डिमांड किया था, दिस वॉज इन फॉर्म ऑफ करेंसी एंड दिस वॉज इन फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। ये 73 रुपीज़ इज सपोर्टिंग मार्केट का मनी सप्लाई ऑफ 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो बेसिकली अगर इसको 0.73 से करोगे तो ये भी 100 बन गया। नाउ व्हाट आई मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, दिस टर्म 1 अपॉन दिस इज कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर। कि ये क्या कर रहा है, दिस इज बेसिकली कन्वर्टिंग दिस 73 रुपीज ऑफ हाई पावर्ड मनी इनटू अ मनी सप्लाई ऑफ 100 रुपीज। और क्यों कर रहा है, क्योंकि दिस इज बेसिकली लेस देन 1, अगर लेस देन 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो मल्टीप्लायर बन जाएगा, तो बेसिकली बढ़ जाएगी। एंड इफ़ यू डू, अगर आप देखो 1 अपॉन 0.73 को अगर आप देखोगे, 1 अपॉन 0.73 इज बेसिकली और मनी मल्टीप्लायर m, स्मॉल m, तो आई कैन राइट m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू h। और ये m कितना है, दिस m इज 1 अपॉन 0.73 और ये 0.73 कितना हो गया, दिस 0.73 इज नथिंग बट 1.369। तो मेरा मनी मल्टीप्लायर जो है वो 1.369 है। तो अगर मैं 73 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा 1.369 से, तो मेरे पास बेसिकली आ जाएंगे कि 100 रुपये इकोनॉमी के अंदर है। तो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने जो पैसा प्रिंट करा है वो कितना करा है, 70 रुपये दिए हैं, 70 रुपये दिए हैं पब्लिक को, 3 रुपये दिए हैं बैंक्स को रिजर्व के फॉर्म में। ये 73 रुपीज़ जो आरबीआई ने प्रिंट किया इज सपोर्टिंग अ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड ऑफ इकोनॉमी ऑफ 100 रुपीज़। तो ये जो इसका मल्टीपल है दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। तो इसका आप डायग्राम कई बार देखोगे बुक्स के अंदर, यू विल सी कि H विच इज़ हाई पावर्ड मनी is basically creating an impact in the economy through money multiplier, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई ज़्यादा होता है। तो और वो क्यों है, और ये मल्टीप्लायर क्यों है, क्योंकि जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि बैंक कुछ पैसा अपने पास रखेगा फिर आगे लोन दे देगा, फिर वो बैंक कुछ पैसा रखेगा अपने पास फिर आगे लोन दे देगा। तो दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट कीप्स ऑन गोइंग, इट बिकम्स एक्चुअली एन इनफाइनाइट जीपी। एन इनफाइनाइट जीपी का सम हमें पता है कि क्या होता है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। सो अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं कि व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर इज m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू h। दिस इज हाई पावर्ड मनी, this is what is called as high powered money, and this is your money multiplier. So and उसको अब हम हाई पावर्ड मनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है। इसको इसीलिए इसको बेस मनी भी कई बार बोलता है कि ये जो है मॉनेटरी बेस है, इसी को हम कई बार मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। वी कॉल दिस एज मॉनेटरी बेस एज वेल, दैट इट हैज़ the ability to expand itself and become money supply through the concept of money multiplier. Now, any doubts till this point? Yes, I know it is technical. I know I have taught you in a broader sense, but if you have doubts in this, I'll be happy to take it. Then I will, because if you understand this concept, then I'll be able to explain you. Then फिर वो easy हो जाएगा आपको उससे पढ़ाना. Any doubts? If you have a doubt, please type in. किसको doubt है? Can you raise your hand, please? किसको था doubt? Okay. So सबको समझ में आ गया? What we have done is RBI has printed 73 rupees and it is supporting in the entire country. It is actually generating a money supply of 100 rupees, and that is the concept of money multiplier. That is money multiplier. जैसा आपने शायद से अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड और वो करा होगा ना, अगर आपको कीन्स की मैक्रो याद हो तो आपने क्या किया होगा कि अल्फा जी जो होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है 1 अपॉन सी 1 माइनस टी, ये जो मल्टीप्लायर था ये क्या कर रहा था, आप 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अगर आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 रुपये तो जीडीपी जो है वो 1000 रुपये से बढ़ रहा था। यही आपने पढ़ा था। दिस वॉज द कंसेप्ट दैट यू हैड डन इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। द आइडिया इज सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई विल शो यू हाउ दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट that 73 rupees is basically printing or making of 73 rupees is creating a money demand and money supply of 100 rupees in the economy.
Now let's get into the technicalities of this person Jadhav, and देखते हैं कि what did he say. Now what he says is, now try to bear with me. मैं सेम कंसेप्ट सेम एग्जाम्पल के साथ आपको सेम चीज़ समझा दूंगा, ठीक है. एंड देन वील गो ऑन टू द रीडिंग. लेट्स अंडरस्टैंड जादव एज वेल. सेम उसमें. नाउ जादव भी इसी चीज़ से शुरू करता है कि बॉस, और वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये हाई पावर्ड मनी क्या है, ये सी क्या है, आर का है. यही प्रॉब्लम है इस ऑथर की कि ये कुछ नहीं एक्सप्लेन करता सीधा. और हमारे रीडिंग्स में क्या है, we are only picking up chapter number 2 without even studying what is chapter number 1. So that continuity actually gets broken if you don't get the concept right. But at the same point of time, this is a very important source for your examination. तो जादव कहता है बॉस, योर हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू सी प्लस आर. ना अब आपको बताइए सी प्लस आर क्या है. ये क्या है, जो आपकी पब्लिक ने करेंसी मांगी, ठीक है, और जो बेसिकली आरबीआई किसके लिए प्रिंट कर रहा है. आरबीआई कह रहा है कि मुझे एक तो पब्लिक को देना है, और दूसरा कह रहा है कि मुझे रिजर्व्स रखने हैं, क्या कहते हैं, रिजर्व्स जो बैंक्स मांगते हैं उसके लिए भी मुझे प्रिंट करना पड़ रहा है. सो दिस इज वही 70+3 73 वाला एग्जाम्पल आप दिमाग में रख के चलो कि ओवरऑल डिमांड फॉर मनी 100 रुपीज़ थी, 70 रुपये वहाँ पर, 30 रुपये वहाँ पर, एंड 3 रुपये आपने रिजर्व्स के फॉर्म में रखा. नाउ अब वेयर दिस जादव गाई सेपरेट्स फ्रॉम अदर स्टफ इज, ये कहता है कि बॉस मनी जो है that you have is in form of currency, is in form of reserves. और ये reserves क्यों हैं, क्योंकि ये reserves इसलिए, let's reserves से पहले deposits देखते हैं कि deposits आए ये 30 रुपये के, ये 70 रुपये का ये था. और इस deposits को लोगों ने दो फॉर्म में रखा. एक फॉर्म में रखा डिमांड डिपॉजिट्स, मान लो इसको 20 रुपये रखा, और एक रखा टाइम डिपॉजिट जिसको रखा 10 रुपये. हाँ, what does that mean? बेसिकली आपके पास 30 रुपये थे, उसमें आपने you have kept 20 रुपीज़ इन योर चेकेबल अकाउंट, इन योर सेविंग्स अकाउंट, एंड 10 रुपीज़ यू हैव इन्वेस्टेड इन योर एफडी जो 5 साल बाद मैच्योर होगी. बट एसेंशियली आपके डिपॉजिट तो 30 रुपये हैं. आरबीआई कहेगा कि इस 30 रुपये के पीछे आई नीड सम रिजर्व्स, जिसको मैं थीटा पहले बोल रहा था. आरबीआई सेज आई वॉन्ट टू कीप 10%, आई वॉन्ट यू टू कीप 10% विद यू इन फॉर्म ऑफ CRR. सो दैट मीन्स in this case the reserves will be 3 रुपीज़. सेम एग्जाम्पल, बस वो 3 रुपीज़ जो है वो इन दो चीज़ों से टूट के आ रहा है. Now what is your demand for money? Let's say demand for money क्या है. Demand for money is C plus R. Can I write this as C plus, ठीक है, R कितना है, can I say R, ये 70, ये 3 रुपीज़ था ना, ये 3 रुपीज़ कैसे आया. R will be DD plus TD का कुछ परसेंटेज, यही है ना. ये तो हुआ 70, ये हुआ 0.1, ये हुआ 20, ये हुआ 10, तो इस 30 का 0.1 तो वही 73 रुपीज़ हो गया, 70 + 3 रुपीज़. सो दिस इज़ द डिमांड फॉर मनी. अब पॉइंट इज की सप्लाई ऑफ मनी कितना है, मार्केट के अंदर पैसा कितना है. अब ये जो है जादव जो है वो कहता है दैट बॉस वी आर कीपिंग दिस सप्लाई ऑफ मनी. So Jadhav says that we are keeping this supply of money as say this thing broad money. तो ये कहता है कि मैं broad money देखता हूँ. अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा व्हाट इज़ दिस ब्रॉड मनी, व्हाट इज़ दिस नैरो मनी, ये सब चीज़ें हमें कंसेप्ट भी करने हैं. नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है, और ब्रॉड मनी टू मॉनेटरी और नैरो मनी का जो वो होता है रिलेशन होता है उसी को मनी मल्टीप्लायर भी कई बार बोल देते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. खैर, सो ब्रॉड मनी क्या होता है. लेट्स अंडरस्टैंड ब्रॉड मनी की दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मनी हम क्या ले सकते हैं. हम कह सकते हैं कि कैश भी मेरा जो सर्कुलेशन में है वो भी मनी है, और जो मैं डिमांड डिपॉजिट्स कर रहा हूँ बैंक में वो भी मनी है, और टाइम डिपॉजिट्स जो कर रहा हूँ वो भी बैंक मनी है. तो बेसिकली जब हम बात करेंगे अभी मनी के ऊपर की व्हाट इज़ M1 M0 M1 M2 M3, तो हम M3 को ये बोलेंगे कि ये M3 है. देयर इज समथिंग कॉल्ड NM3 या M3, वो ये है. तो बेसिकली लूजली डिफाइंड पैसा. अब अगर आपको ये समझ नहीं आया तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हम जब कहते हैं पैसा, व्हाट इज़ मनी, मैं किसी चीज़ को भी पैसा बोल सकता हूँ. मैं कह सकता हूँ क्या कहते हैं, कैश तो कैश है ही मेरे लिए. ये माउस भी एक कैश है. आई थिंक I'll also drag it here just in case. Hold on a second, folks. So, yeah. Yes, and let me just pin this. So मैं कहता हूँ कि I say that this is also money and this is also money.
So I say that what is money? I say money is this mouse is also money. I can convert it into money. Let me just shift this, guys. This is cramming up my system actually. Not good. Give me 1 second. Sorry, too much of experimentation. Yes. So I say this C plus D plus. So अब मनी क्या हो सकता है? मनी तो कुछ भी हो सकता है. I can say money can be anything. Money can be your laptop can be money. I can say property is money. I can say my fixed deposit money, my shares is money. तो मनी के बहुत सारे के सारे आपके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं मनी के. नाउ तो आरबीआई क्या करता है, और इन जनरल जो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी वो कहते हैं कि बॉस या तो आप देख सकते हो कि कौन इशू कर रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को. फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस भी तो मनी है, पोस्ट ऑफिस में जो पैसा है वो भी तो मनी है, तो वो पोस्ट ऑफिस एज एन इंस्टीट्यूशन कर रहा है. फिर हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिक्विड ज़्यादा है, कौन सी कोई इलिक्विड है. मेरी जो वेल्थ है अगर प्रॉपर्टी में तो वो इलिक्विड है मनी, बट आई कैन यूज़ इट. आई कैन हाइपोथाइज इज, आई कैन सेल इट, आई कैन मॉर्गेज इट, बट इट विल टेक टाइम. इट्स इलिक्विड मनी. कैश जो है वो लिक्विड है, सेविंग बैंक अकाउंट लिक्विड है, म्यूचुअल फंड्स इज लिक्विड, बट उसमें शायद से टाइम चाहिए. एफडी थोड़ा और ज़्यादा इलिक्विड है. तो वी डिफाइन फ्रॉम क्या कहते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिक्विडिटी. तो मनी को हम दो तरीके से, एक्चुअली हम आगे जाके देखेंगे, मनी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक टर्म्स में लिक्विडिटी के टर्म्स में, और दूसरा मनी को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस कि कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको बेसिकली निकाल रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको क्या कहते हैं इशू कर रहा है. सो वी से कि हम ब्रॉड मनी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ब्रॉड मनी M3 है, विच इज़ मार्केट के अंदर मनी कितना है, एंड दैट इज C प्लस D प्लस DD प्लस TD. तो ये तीन चीज़ें जो हैं मिलके हमारा बेसिकली ब्रॉड मनी है. अब हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? वी से मनी मल्टीप्लायर M, वो कंसेप्ट वही है, दैट M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू H. मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली में तो वो भी यही कहता है. तो व्हाट इज दिस कंसेप्ट? ये कहता है कि मनी मल्टीप्लायर इज बेसिकली कि आपका कितना मनी है अपॉन आपका H. तो इसमें हम M3 ले रहे हैं. M3 बेसिकली मीन हो गया C प्लस DD प्लस TD. ये हो गया हमारे पास जो हमारा ब्रॉड मनी है, ठीक है. और हमारा डिनोमिनेटर क्या है? H क्या है? C प्लस R. कैन आई ओपन अप R एंड आई कैन से C प्लस DD प्लस TD. ठीक है, ये तीन चीज़ें तो हैं हमारी ब्रॉड मनी की, अपॉन C प्लस. नाउ दिस R इज़ नथिंग बट R इंटू जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं प्लस जो टाइम डिपॉजिट्स हैं. यही हमने ऊपर देखा था कि जो दो पर्पस थे. अब व्हाट इट हैज़ डन इज दिस रीडिंग, व्हाट इट हैज़ डन इज कि ये कहता है मनी इस पूरी इक्वेशन को आप अभी तक हमने जो लिखा C प्लस DD प्लस TD अपॉन C प्लस R DD प्लस TD, इस पूरी इक्वेशन को वो बस एक आर्टिफिशियली DD से, डिमांड डिपॉजिट से डिवाइड कर देता है. तो ही सेज C अपॉन DD प्लस 1 प्लस TD अपॉन DD अपॉन C अपॉन DD प्लस R 1 प्लस TD अपॉन DD. सिंपल इस फॉर्म में ले जाता है इसे, और इसको लिख देता है स्मॉल c. इसको क्या लिख देता है कि दिस इज करेंसी डिपॉजिट मल्टीप्लायर. मेरे पास कितना कैश पड़ा है एज कंपेयर टू मेरे बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक में कितना पैसा है. दैट इज कॉल्ड एज करेंसी डिपॉजिट रेशो. एंड दिस करेंसी डिपॉजिट रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट फोक्स. ट्राई टू थिंक कि पेटीएम की वजह से क्या आया हुआ है. क्योंकि मैं आपको अगर बोलूँ कि टेक्नोलॉजी का दिस इज हाउ टिपिकली जो यूपीएससी और अगर कहीं पर भी दिमाग वाला क्वेश्चन है और अगर आप आंसर लिख रहे हो यूपीएससी का, तो एटलीस्ट थोड़ा दिमाग लगा के लिख सकते हो कि यार पेटीएम के आने की वजह से, फिनटेक के आने की वजह से क्या हुआ है कि करेंसी और डिपॉजिट जो वो रेशो है वो कम हुआ होगा. लोगों ने अपने पास पैसा कम रखना शुरू कर दिया क्योंकि आज की डेट में भिखारी भी पेटीएम पे पैसा ले रहा है. तो दैट मीन्स कि आपके डिपॉजिट्स बढ़ गए होंगे, उसका इंपैक्ट मनी मल्टीप्लायर पे करा होगा. तो आप ये एग्जाम्पल क्यों नहीं दे सकते व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो दिस इज स्मॉल c करेंसी डिपॉजिट रेशो प्लस 1, और ये TD अपॉन उसको लिखता है स्मॉल t, और ये क्या हो गया C स्मॉल c, ध्यान रखना है स्मॉल c R 1 प्लस t. ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड शो इट टू यू कि ये वैल्यू बिल्कुल सेम आई होगी जो हमने वो निकाली थी. अगर हमारी वैल्यूज सेम है, अगर हमने बाकी सब कुछ सेम किया है, तो मेरा जो आंसर है वो भी तो सेम होना चाहिए. जो पिछली बार मेरा आंसर आया था मनी मल्टीप्लायर का, वो था
m was equal to 1.369, 1.37, ठीक है, एंड आई वांट यू टू कैलकुलेट दिस ऑन योर ओन, ठीक है. तो आपको रीइंफोर्स हो जाएगा कि तरीका मैं कोई भी कर लूँ, मनी मल्टीप्लायर तो मनी मल्टीप्लायर ही रहेगा. दिस आई एम सेइंग इज मनी मल्टीप्लायर. अब ये स्मॉल सी क्या था, स्मॉल सी वॉज सी अपॉन डी डी. मैंने क्या बोला था, मेरे पास कैश कितना है 70 रुपये. मैंने कहा था डिमांड डिपॉजिट मेरे पास 20 रुपये है, तो ये कितना हुआ 3.5. स्मॉल टी कितना हो गया, स्मॉल टी इज टी डी अपॉन डी डी. ये कितना था 10 रुपये, ये कितना था 20 रुपये, ये हो गया 0.5. मेरा आर कितना है, आर इज 0.1. जस्ट पुट ऑल दीज थ्री वैल्यूज हेयर. ये क्या आएगा 3.5 प्लस आधा 4 प्लस 1 5 अपॉन 3.5 प्लस 0.1 इंटू 1.5, ठीक है. तो आई कैन राइट दिस इज 5 अपॉन 3.5 प्लस 0.15. आई कैन राइट दिस एज 5 अपॉन 3.65. इसको कैलकुलेट करोगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.37. तो मनी मल्टीप्लायर मैंने आपको जादव से भी पढ़ा दिया, मनी मल्टीप्लायर मैंने आपको पुराने उससे भी पढ़ा दिया. आंसर इज द सेम. मनी मल्टीप्लायर मुझे यही बता रहा है कि बॉस इफ़ आई एम सेइंग m इज इक्वल टू, मार्केट में अगर 100 रुपये हैं तो मेरा मनी मल्टीप्लायर जो होगा वो 1.37 होगा, क्योंकि मेरे पास जो हाई पावर्ड मनी जो इकोनॉमी में है वो सिर्फ 73 रुपीज़ थी. सो 73 रुपीज़ जो इकोनॉमी में जो RBI ने प्रिंट करा, जो हाई पावर्ड मनी था, वो मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई हुआ और उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर टोटल 100 रुपये की डिमांड और 100 रुपये की सप्लाई हुई. इज़ नाउ फ्रॉम दिस, और ये आपका अगर आप नरेंद्र जादव भी मैं आपको दिखाऊंगा, नरेंद्र जादव के अंदर एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. बट द बैकग्राउंड स्टोरी टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच पीपल काइंड ऑफ डोंट फॉलो. ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया मल्टी मल्टीप्लायर. और अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आप और सेम चीज़ देखो, अब मैं मनी मल्टीप्लायर को ऐसे लिखूं, इसके अंदर एक्सेस 2-3 चीज़ें और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, मैं एक्सेस रिजर्व वगैरह दे सकता हूँ, बस सिर्फ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. मैंने मल्टी मल्टीप्लायर आपको 2 तरीके से बताया. मैंने आपको बताया कि 1/c प्लस थीटा इंटू 1-c, बात वही है, दिस थीटा इज नथिंग बट आर. और मैंने दूसरा आपको बताया कि ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर इज 1+c प्लस टी अपॉन 1/c प्लस आर इंटू 1+t, बात वही है. ये ब्रॉड मनी है, स्मॉल और वो नॉर्मल है, बट दोनों सेम ही चीज़ें बोल रहे हैं, दोनों आपका मल्टीप्लायर सेम ही निकलेगा. बट यू शुड नो कि कैसे आएगा. और अगर आपके पास क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर का, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन थिंक कि अच्छा दिस इज थ्रू, एंड यू डोंट इवन नीड टू मग दिस अप. अगर आप देखो तो अगर लॉजिकल, अगर 2 मिनट अगर आपने मनी डिमांड और मनी सप्लाई करना दिमाग में लगा दिया, तो आप पेपर के अंदर डिराइव कर सकते हो उसको, रादर देन इसको रटने के. और लॉजिकल एकदम, मतलब सिंपल मैथ है, सिंपल लॉजिक है. 100 रुपये का एग्जाम्पल हो, अपने आप आपका निकल जाएगा ये चीज़ की मनी मल्टीप्लायर कितना होगा. एनी डाउट्स है फोक्स? किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर दो, आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट. अगर नहीं है तो वील गो ऑन टू द रीडिंग क्विकली एंड देन वील कवर अ फ्यू थिंग्स. एनी डाउट? समझ में आ गया यहाँ तक जितने बच्चे टिके हैं? 50 ऑफ यू, 47. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स देन मूव टू. अब मैं आपको आई शो इट टू यू. आई थिंक देयर आर कपल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूपीएससी. आई थिंक जसनूर, इफ़ यू आर देयर, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, हो गया. वेयर इज जसनूर? या Jason, did you get it? Because you are not from typical that econ, मतलब of course you are econ background but not econers. तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट उस सेंस में आ जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू where is it? Where's my PDF? So let me share. And folks who are attending my morning session, it will start from 5:30 onwards in the morning tomorrow, and not at 6 o'clock. And I'll also tell you later that from June onwards, I will be taking these sessions which I have in the early morning, where I cover meditation, journaling, as well as current affairs, from any point of view. If you're appearing for a competitive exam, especially UPSC or anything else. So the Indian Express of the previous day, when we'll start from 5:30
till 6:30 or 6:15, and that will be an offline and online class. It will be an offline class as well, and I'll announce you where it will be. It will be just at near the metro station at Mitras IAS. So just in case if you are basically a sucker for this early morning routine and kind of rebuilding your schedule for any competitive exam, I think this could be something that you can look into. Now let's go into this this money matters. Now let's understand क्या ये क्या बोल रहा है सबसे पहले. Let me just zoom it a little. I have marked this क्योंकि because this is a scanned copy, so maybe the marking will not be that accurate. You might see some kind of issues in terms of highlighting. Now सबसे पहले concepts and measures के बारे में बात होती है. Now अब मनी क्या है, सबसे पहले तो ये बात हो रही है कि व्हाट इज़ मनी. नाउ अ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ मनी, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इज़ दैट इट हैज़ सम फंक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट. जो मैंने आपको बताया, फंक्शनल एट्रीब्यूट क्या होता है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू. सो ऑल ऑफ दीज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ अकाउंट. सो ऑल ऑफ दीज आर फंक्शनल values. These are all functional things that a money can give you. Liquid or illiquid, this is again functional. Wealth जो है वो illiquid है, property जो है illiquid है, cash जो है वो liquid है. These are all functions. Barter system भी एक तरीके का money हो सकता है, but again उसका एक function है. Then इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स, कौन वो इशू कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम और इज इट अ इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, in India itself, we have a direct banking system, which is the commercial banking system, and we have an indirect banking system, which is the NBFCs. So अगर आपने देखा हो मुन्नापुरम गोल्ड लोन, अब ये क्या है, ये NBFCs हैं, ठीक है. दीवान हाउसिंग, ILFC, ये सारे जो हैं ये अगेन इनका भी फाइनेंशियल सेक्टर में काम है, बट पोस्ट ऑफिसेस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये डायरेक्टली डील नहीं कर रहे जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं. सो हम इंस्टीट्यूशन कौन सा इशू करता है उस पर भी हम डिफाइन करते हैं मनी पे. इनफैक्ट इन केस ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है. जब आप YV रेड्डी का जब आप रिपोर्ट पढ़ोगे, जो नेक्स्ट वाला रिपोर्ट है कि हमने मनी की क्लासिफिकेशन क्या करी हुई है, तो उसके अंदर किसने इशू किया है वो इंस्ट्रूमेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंस लेता है ओवर द फंक्शनल एट्रीब्यूट. नाउ सो अब मनी क्या है, मनी हम कह सकते हैं कि मनी इज एनी मेजर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एग्रीगेटिंग सम रेलिवेंट फंक्शनल एसेट्स पोजेसिंग दिस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स. तो कोई भी एक ऐसा एसेट, फंक्शनल फाइनेंशियल एसेट जो ऐसे एट्रीब्यूट्स हों. तो एज आई सेड, FD भी मनी है, RD भी मनी है, म्यूचुअल फंड्स भी कुड बी मनी, एंड कैश कुड बी ऑल्सो मनी, बिकॉज उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ उसके अंदर इनहेरेंट उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं. ना अब ये तो हुआ आपकी थ्योरेटिकल, दिस इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल अप्रोच टुवर्ड्स मनी, जहाँ पर आप उसको पहले कंसेप्चुअलाइज करते हो. मनी पता होने से पहले, मनी गिनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मनी है क्या. तो थ्योरेटिकल अप्रोच में पहले आप कंसेप्ट बनाते हो मनी का. और दूसरा जो तरीका है मनी को देखने का, वो एक एम्पेरिकल तरीका है विच डज नॉट रिलाई ऑन एनी प्री कंसीव नोशन. और वो सिंपल कहता है कि आप एग्रीगेट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कर दो, और जो भी आपके दिमाग में किसी चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा जा रहा होगा. फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ एसेट्स का एग्रीगेशन किया और कहा कि अगर इसका GDP के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है तो वो सारी चीज़ें मनी है. तो आपने मनी डिफाइन नहीं किया. आप मनी को डिफाइन किए बिना आप पहले कोई फाइनेंशियल एग्रीगेट्स को एग्रीगेट कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि इसका रिलेशन GDP के साथ बड़ा अच्छा चल रहा है, तो ये सब जी मनी है. तो आप रिवर्स वो फ्लो कर रहे हो. यूजुअली हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी बनाते हैं, फिर उसको एम्पेरिकली चेक करते हैं. ये पहले एम्पेरिकली चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि ये चीज़ मनी होनी चाहिए. सो द रिवर्स फ्लो एक्चुअली देयर है. इसीलिए थोड़ा क्रिटिकल है. यूजुअली हम थ्योरेटिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, एम्पेरिकल अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं. दिस इज़ वॉट दिस पर्टिकुलर डिटेल, ये जो पूरा डिटेल है वो इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा है. एंड देन फंक्शंस ऑफ मनी. ये तो आपने क्लास 11वीं 12वीं में भी किया होगा. मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है मनी. देन उसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट होता है कि उसकी वैल्यूज़ जो है आप बाकी सारी कमोडिटीज़ को उसके टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो आप ये न्यूमरेयर ले के परेशान हो जाओगे. देन स्टोर ऑफ वैल्यू है कि आप उसकी वैल्यू कुछ टाइम तक रहेगी, बट इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो सकता है तो उसकी वैल्यू ऊपर नीचे भी जा सकती है. एंड अब उसके बाद आता है कि हम मनी को मेजर कैसे करें.
हमने डिफाइन कर लिया कि यार इसके अंदर मनी के अंदर क्या होगा कि कुछ तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर देखेंगे और कुछ मनी के अंदर हम उसके स्पेसिफिक इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो अब वो क्या मनी है। अब मनी के जो थ्योरीज हैं, एक तो ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ मनी विच एसेंशली सीज मनी एज एन इन्वेंट्री फॉर होल्डिंग ट्रांजैक्शन, और दूसरा जो मनी का जो मेजरमेंट का तरीका है वो है एसेट थ्योरी, जो कहता है कि मनी इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर वेल्थ, मनी इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ वेल्थ, इट कैन बी आई मीन बाकी सारी चीज़ें भी तो मनी है। तो जैसे मेरे पास अगर 1000 रुपये पड़े हुए हैं तो मैं उसको अलग अलग एसेट्स में बांट के रखूँगा ना, तो वो एसेट थ्योरी डिबेट हो गई कि मैंने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में रखा, कुछ पैसा एफडी में रखा, कुछ पैसा कैश में रखा, कुछ पैसा कहीं और रखा। सो दिस इज द एसेट थ्योरी ऑफ मनी एज अ ब्रॉडर पार्ट ऑफ वेल्थ। नाउ अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डिफरेंट, और हम क्या कर सकते हैं कि यू कैन हैव फाइनेंशियल एसेट्स वेयर फेवरिंग नैरो मेजर्स और एसेट थ्योरीज विच आर मेजरिंग ब्रॉडर मेजर्स। तो अगर आप क्या कहते हैं नैरो वाला ट्रांजैक्शनल व्यू लेते हो मनी का, तो जैसे जो क्लासिकल्स बोलते थे, याद है क्लासिकल्स क्या बोलते थे मनी को, मनी कहते थे कि मनी के सिर्फ ट्रांजैक्शन का पर्पस है। इट वाज कीन्स हु सेड दैट बॉस मनी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, ट्रांजैक्शंस नहीं होता, उसका प्रिकॉशनरी पर्पस भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कीन्स ने कही थी कि उसका एक स्पेक्यूलेटिव पर्पस भी होता है मनी का। हम जो आपको अगर याद हो लिक्विडिटी ट्रैप के लिए हम मनी अपने पास रखते हैं। सो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मनी ले रहे हो। अब उसमें भी आप मनी का जैसे भी लोग उसको आप एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो कि सबसे पहले कैश मेरा मनी है, फिर आप कहोगे कि मेरा सेविंग बैंक का अकाउंट मनी है, फिर आप कहोगे कि मेरा एफडी मनी है, फिर आपको कहोगे मेरे पास बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े हैं वो भी मनी है, फिर कहोगे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो मेरे पास पड़े हैं वो भी मनी है। फिर आप ऐसे मनी का फ्रॉम लिक्विड टू इलिक्विड आप उसको कर सकते हो। फिर आप ये भी कह सकते हो मेरा रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, ये भी सब मनी है। तो इस तरीके से यू कैन ड्रॉ अ पैकिंग ऑर्डर ऑफ स्टफ। अब उसके बाद उसने यूएस का दिया, हमें उससे यूएस से मतलब नहीं है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन जो आरबीआई ने दिया, और यहाँ पर वो मेंशन भी कर रहा है कि आरबीआई वाली जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पर इसने कोट भी कर दिया। और इन इंडिया what has happened is कि आफ्टर लिबरलाइजेशन, आफ्टर फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन इन 1990s, तो जब आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो आप ये तारापुर कमेटी रिपोर्ट पढ़ोगे, तारापुर 1, तारापुर 2, देन आप नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट, स्पेशली नरसिम्हा पढ़ोगे, नरसिम्हा 1 एंड नरसिम्हा 2। तो ये इन चीज़ों के बारे में बात करती है। इनफैक्ट सम ऑफ देम माइट बी इन पार्ट ऑफ योर कोर्स एज वेल। सो अब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि व्हाट इज़ ये एक बार ये मैंने मार्क कर दिया, इसको एक बार पढ़ लेना कि व्हाट इज़ मनी और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने किस किस चीज़ों में डाली है। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि इन्होंने 4 आपको वो दिए स्पेसिफिकेशन ऑफ नैरो मनी, और उसके बाद 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स दिए। अब इसने क्या बोला, सबसे पहले मनी क्या होगा, मॉनेटरी बेस, जो मैं आपको बोल रहा था ना, मैंने आपको मॉनेटरी बेस क्या बोला था, एच इज़ नथिंग बट इक्वल टू C+R, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। जो CRR जो होता है वो बैंक को एक्चुअली में हर फोर्टनाइटली आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो जो 3 रुपये थे, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये आपका नैरो मनी है, मॉनेटरी बेस है, इसी को हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, इसी को एच भी बोलते हैं। देन नैरो मनी का जो कंसेप्ट है वो क्या है, करेंसी विद पब्लिक, नॉट सर्कुलेशन, करेंसी जो पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, विच इज़ नथिंग बट डिमांड डिपॉजिट मीन्स जो मेरा सेविंग बैंक का डिपॉजिट है, दैट इज द डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, प्लस अदर, या हर जगह पे डाल सकते हो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, NM2 क्या है, NM1, तो उसमें क्या थे, देखो उसमें अभी तक हम सिर्फ कैश और डिमांड डिपॉजिट, स्टेकेबल डिपॉजिट कर रहे थे। अब हमने क्या किया, एफडी को भी इंक्लूड कर लिया, हमने एक और एसेट ऐड कर दिया कि वो तो पुराना वाला तो है ही, प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन, बेसिकली TD, डिमांड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, प्लस अब आपने एक नया इंस्टीट्यूशन ले आए। यहाँ तक तो ये तो बैंक्स ही करते हैं, कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ये सारे करते हैं। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कि भाई CDs जो बैंक इशू करता है और एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करता है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाता है। CDs तो कॉर्पोरेट्स को भी हो जाती है कि कॉर्पोरेट को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स लेके जा सकता है बैंक से, और प्लस टर्म डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, क्योंकि फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स फॉरेन पर्पसेस के लिए होता है, विद कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर इन द बैंकिंग सिस्टम। तो अब ये टर्म डिपॉजिट्स जो हो जाएंगे आपके वो जो आपके मेजर FDs हैं वो जो है वो भी इसका पार्ट हो गए, बट मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। फिर उसके बाद आपका ब्रॉड मनी आ जाता है। ब्रॉड मनी इज़ बेसिकली NM2 प्लस टर्म डिपॉजिट्स
जिनका जो ऊपर वाले बात करी, बट उसका जो वो है उसका जो रेशो है वो एक साल से ज़्यादा, 5 साल की आपके एफडी लगाई हुई है, वो यहाँ पर आ गई। एंड कॉल बोरोइंग्स, डेली बोरोइंग्स जो आप कर रहे हो, बट जो जो सिस्टम कर रहा है, बट फ्रॉम नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, NBFC से। सपोज आपका जो पैसा है जो NBFC से फाइनेंशियल सेक्टर ने बोरो किया, बैंक्स ने बोरो किया, वो सारा का सारा जो पैसा है वो आ जाएगा जो बैंक्स ने बोरो किया है। सपोज मैं कहता हूँ मन्नापुरा गोल्ड लोन से या दीवान हाउसिंग फाइनेंस से या ILFS से HDFC ने कुछ पैसा मांगा है 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। कॉल मनी बेसिकली छोटी उसके लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए होता है। तो वो जो पैसा है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। बट अब इंस्टीट्यूशन चेंज हो गया, अब यहाँ पर आप NBFCs का भी जो पैसा शॉर्ट टर्म का वो भी काउंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई इसके ऊपर वाली जो वो हैं वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम नहीं है, वो अलग सिस्टम है। तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हो, फिर कहते हो NM3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद सेविंग बैंक विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि उनके पास भी सेविंग बैंक डिपॉजिट्स होते होंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो बट दिक्कत क्या है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा है ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जा रहा है। ठीक है, ये जो पैसा आपका है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जा रहा है, वो अपने हिसाब से खर्च करती है। और फिर अब उसके अंदर एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो बेसिकली टैक्स सेविंग के लिए होता है, फिर प्लस अब उसने L1 ऐड कर दिया, प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल ये जो NBFCs हैं इन्होंने से किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, किसी रीफाइनेंस कंपनी को, जैसे आपकी हो गई नाबार्ड क्या कहते हैं रीफाइनेंस के लिए, उनको पैसा दे दिया, तो वो टर्म डिपॉजिट जो है उसके भी आपके यहाँ पर आ गया। और फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन उसके अलावा L2 जिसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ NBFCs। फॉर एग्जांपल मैंने पैसा से किसी NBFC के पास जाके छोड़ दिया है, तो वो भी जो पैसा है वो भी इसके अंदर आया था। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन चेंज हो गए, बट जो हमारे जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं, वो यहाँ तक ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना मनी का डिवीजन किया। ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है YV रेड्डी की जो रीडिंग है, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, उसके अंदर ये सब सेम चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, देन कम्स उसके बाद ये पूरा पार्ट हो गया। फिर मनी सप्लाई का पार्ट आ जाता है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, M = M × H, और ये मैंने आपको मनी मल्टीप्लायर बताया। अब ये जो मनी मल्टीप्लायर है इसके दो पार्ट्स हैं, एक M और एक H। अब M भी चेंज हो सकता है। M क्या था? M was = 1 + C + R 1 + C + T + C + R 1 + T। अब दैट मीन्स इनके चेंज होने की वजह से मनी मल्टीप्लायर भी चेंज हो सकता है, और हाई पावर्ड मनी भी तो चेंज हो सकता है। हाई पावर्ड मनी सरकार चेंज कर सकती है, सरकार ने ज़्यादा प्रिंट करके डाल दिया मार्केट में पैसा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज। तो इकोनॉमी के अंदर पैसा कैसे चेंज हो सकता है? या तो मनी मल्टीप्लायर चेंज हो जाए, या चेंज हो, या दोनों में से कोई चेंज हो जाए। सो दिस इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिजर्व मनी एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट मनी मल्टीप्लायर। तो ये दोनों आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। देन फिर उसके बाद मैंने आपको H प्लस ये C + R मैंने बता दिया, सोर्सेज ऑफ चेंज ऑफ मनी। अब ये देखो, इसमें इसने क्या किया, मैंने आपको बताया कि H = C + R। ये बेसिकली सारी लाइबिलिटी है, जो पैसा RBI ने प्रिंट कर दिया वो सारी उसकी लाइबिलिटी है। करेंसी विद पब्लिक C, और ये RBI की बैलेंस शीट है, और बैंक रिजर्व्स विच इज़ R। C + R इज बेसिकली योर हाई पावर्ड मनी। बट बैलेंस शीट है बॉस, बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट हैज़ टू बी इक्वल, एसेट्स हैव टू बी इक्वल टू लाइबिलिटी। अगर दिस इज इक्वल टू इफ दिस इज H, then what is also H? H is also equal to this 1 + 2 + 3 + 4 + 5 minus this 3. So I can say 1 + 2 + 3 + 4 + 5 minus this ये वाला आइटम नेट नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटीज, ये जो थर्ड वाला है लाइबिलिटी साइड पे, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू दिस। सपोज इन दोनों का सम इज 73 रुपीज़, तो इन सब का सम भी, तो इन सब का सम माइनस दिस शुड ऑल्सो भी 73 रुपीज़, तभी तो बैलेंस शीट मैच होगी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि भाई मेरा मनी सप्लाई चेंज कैसे हुआ, आपको ये देखना है कि मेरा हाई पावर्ड मनी जो है वो चेंज कैसे हुआ, या तो देख लो कि C ज़्यादा प्रिंट किया होगा, या R ज़्यादा या रिजर्व ज़्यादा हुए होंगे।
अब दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू सी क्यों ज़्यादा हुआ होगा कि गवर्नमेंट को छाप के पैसा दे दिया, या आरबीआई ने बैंक्स को पैसा दे दिया, या आरबीआई ने कमर्शियल सेक्टर को पैसा दे दिया, या नेट फॉरेन एसेट्स ऑफ आरबीआई भी बढ़ गए, तो वो भी वही है, मेरा फॉरेक्स रिजर्व बढ़े जा रहा है। तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है तो मेरा बेसिकली एच भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो ये एसेट साइड से देख रहा हूँ, वो लाइबिलिटी साइड से देख रहा था। और गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटीज़ टू पब्लिक वो भी मेरी बढ़ रही है, माइनस नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज़। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का सम माइनस दिस इज ऑल्सो 73 रुपीज़ इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टेल यू। ठीक है, फिर ये मनी मल्टीप्लायर है, मैंने आपको मनी मल्टीप्लायर बता दिया। इसका अपेंडिक्स 1 के अंदर इफ़ यू सी अपेंडिक्स 1 के अंदर इसका पूरा डिटेल है, और मैंने आपको यही बताया कि दिस इज़ नथिंग बट मनी मल्टीप्लायर। एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? बताओ, एनी डाउट्स? फिर मैं आपको एक क्रिटिकल चीज़ बताऊंगा एंड देन विल शट ऑफ फॉर द डे। एनी डाउट्स? हैंड रेज, कुछ समझ में आ गया? सिंपल थम्स अप। आई नो इट्स लेट। चलो, ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा टेक्निकल है। समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो बाद में वीडियो देख लेना कि मैंने वीडियो में क्या बोला था। ठीक है, क्योंकि रात हो रही है, हो सकता है समझ में आए। थोड़ी सी चीज़ जो है डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। एक्चुअली मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आया था जब मैं एक्चुअली मैं पढ़ रहा था, और व्हेन आई वाज मेकिंग सम स्मॉल नोट्स अबाउट इट, तो मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। नाउ सपोज आप कहते हो कि बॉस मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में जो चेंज हो, उसमें आरबीआई का रोल नहीं हो। अब आरबीआई का रोल कहाँ आता है? खुद सोच के देखो, आरबीआई का रोल कहाँ आता है? मार्केट में कितना, इकोनॉमी में कितना पैसा है, इज एम इंटू एच। अब ये एम क्या है? एम जो है वो 1 + C + T है। क्या सी आरबीआई के हाथ में है? करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना यार, मैं कितना पैसा मेरे पास है, कितना पैसा, अगर मेरे पास 100 रुपये, मैं कितना पैसा पॉकेट में रखना चाहता हूँ, कितना बैंक में रखना चाहता हूँ। पहले मैं नहीं रखता था, मैं पहले बैंक में नहीं रखना चाहता था, अब रखना चाहता हूँ। नेशनलाइजेशन, थिंक अबाउट नेशनलाइजेशन। 1969 में नेशनलाइजेशन हुई, 1980 में नेशनलाइजेशन हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट हो गया कि हाँ यार बैंक में पैसा रख सकते हैं, बैंक में अकाउंट, सरकार का बैंक का क्या डूबेगा। तो उसकी वजह से करेंसी टू डिपॉजिट रेशो गिर गया होगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा कि करेंसी नहीं रखते, बैंक के पास पैसा रखने था, इंटरेस्ट भी तो दे रहा बैंक, पहले तो लाला लेके पैसा लेके भाग जाते थे। तो इसीलिए दिस सी, ये जो C/DD है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो लोगों के हाथ में, टेक्नोलॉजी के हाथ में, फाइनेंशियल इनोवेशन के हाथ में। T/DD जो है कि कितना टाइम डिपॉजिट होगा, कितना ये होगा, ये डिपेंड करता है कि एफडी का रेट इंटरेस्ट क्या है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, सो मेरे हाथ में नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। आरबीआई के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो। ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो है, ये आरबीआई बताता है कि भाई आपका CRR कितना होगा, आपका SLR कितना होगा, ये तो आरबीआई बताएगा। सो इसकी वजह से वो चेंज कर सकता है। बट आप कहते हो, नाउ लेट्स से व्हाट आर वी सेइंग, now suppose we want as an instrument of control, however the impact of reserve money on monetary expansion could be understood if the money multiplier is made invariant to changes in cash reserve requirement। मैं कहता हूँ कि मैं अगर R में कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट जो है मनी मल्टीप्लायर पे नहीं होना चाहिए, उसमें उसका इम्पैक्ट मैं सीधा H पे देखूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ H के थ्रू मनी सप्लाई कितना चेंज हो रहा है। So I want to keep money multiplier invariant of whatever RBI does। सपोज मैं कहता हूँ, उसने RBI ने क्या कहा, पहले याद है आपको 70 रुपये और 30 रुपये थे, और इसका हम 10% कर रहे थे। सपोज RBI कहता है कि बॉस मैं अब 10% लूँगा, मैं 20% लूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 रुपये और हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका हो जाएगा 70 + 6 रुपये, आपके हो गए 76 रुपीज़। नाउ 76 रुपीज़ इज सपोर्टिंग दैट 100 रुपीज़। वॉट डू यू थिंक विल हैपन टू द मनी मल्टीप्लायर? एक बार बताना, बढ़ेगा कि कम होगा, या चेंज नहीं होगा? थिंक अबाउट इट। सोच के मैसेज करो ज़रा ग्रुप पे। अगर पहले 73 रुपीज़ वॉज सपोर्टिंग 100 रुपीज़ इन द इकोनॉमी, अब 76 रुपीज़ इज सपोर्टिंग 100 रुपीज़ इन द इकोनॉमी, व्हाट वुड हैव हैपन टू द मनी मल्टीप्लायर? बड़ा है कि कम हुआ है? छोटा सा सवाल, बच्चे ही भाग गए। ओके, हाँ, रिड्यूस होगा।
सो मनी मल्टीप्लायर जो है वो कम हो जाएगा अब आपका। तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको उसका उसका जो इम्पैक्ट है वो हम कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एक एडजस्टमेंट फैक्टर से माइनस कर देते हैं दैट मेरे पास अब ये बेसिकली क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है कि जो जितना भी मेरे पास एच था, मेरा एच कितना था 73 रुपीज़, अब 73 रुपीज़ के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं एक एडजस्टमेंट फैक्टर लगाऊंगा, वो क्या होगा आर टी माइनस आर ज़ीरो। पहले कितना था, पहले था 1%, अब था पॉइंट अब है 2%, ठीक है। पहले था 10%, अब था 20%, तो इंटू डी। तो बेसिकली कितना हो गया ये हो गया 1%, 10% से चेंज हुआ, 10% का कितने का 10%, डिपॉजिट कितना था, टोटल डिपॉजिट था 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ का मैंने कहा कि 10% इंक्रीज़ हुआ है, तो 3 रुपये मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर है। अब इसमें आपने कहा एक और चीज़ कि इंक्रीमेंटल कैपिटल रिक्वायरमेंट रेशो, अगर इंक्रीमेंटल रिजर्व रिक्वायरमेंट कुछ हो या डिफ़ॉल्ट बाय कमर्शियल बैंक्स हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट बेसिकली आप बेसिकली कह रहे हो कि कितना एडजस्ट करें, कितना आपको आर अपना एच एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नया एच स्टार लिखना पड़ेगा। वो एच स्टार कितना होगा, वो होगा जो एच हो गया 76 रुपीज़ माइनस 3 रुपीज़। तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर अगर मैं कर लूँगा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था 73 रुपीज़ वर सपोर्टिंग 100 रुपीज़, ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर काम कर रहा था। अब मैं क्या कह रहा हूँ 76 माइनस 3 रुपीज़ इज सेम एम रहेगा और वो 100 रुपीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो आपने बेसिकली एक एडजस्टमेंट फैक्टर माइनस कर लिया और एडजस्टमेंट फैक्टर इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव होगा अगर आपका क्या कहते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट, अगर आप CRR बढ़ा दोगे, और कम कर दोगे तो माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली आप वही चीज़ कह रहे हो कि मैं एम को चेंज नहीं होने देना चाहता, एम को नहीं चेंज होना देता तो एच को आपको चेंज करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो अब ये बेसिकली मॉडल है और ये बेसिकली आपने उस मॉडल को अंदर और ऐड कर दिया, आपने एक्सेस रिजर्व्स माइनस कर दिए और डिस्क्रिशनरी फाइनेंस जो है आपने बोरो किया कहीं से पैसा। तो ये तो ओरिजिनल आपका जो आप C+R कर रहे थे, प्लस अगर आप कोई अगर बैंकिंग सिस्टम कहीं से बोरो करता है पैसा वो, और कई बार क्या करते हैं बैंक्स एक्सेस रिजर्व रखते हैं, मुझे रखने चाहिए 3 रुपये, मैं रख रहा हूँ 5 रुपये। अगर मैं 5 रुपये रख लूँगा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर को क्या होगा, मेरा मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसा रखा हुआ। अगर मैं अपने पास ज़्यादा पैसा रखूँगा तो मैं आगे लोन कम दूंगा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। सो थिंक ऑफ इट दैट लीकेजेस, जो अगर आपने याद हो कि अगर मल्टीप्लायर के अंदर लीकेज करते हैं तो लीकेज हो जाएगा ये, तो इसलिए माइनस साइन के साथ आया, और अगर मैं और बोरो कर रहा हूँ तो प्लस साइन के साथ आ रहा है। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो मनी मल्टीप्लायर है, मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा 73 रुपीज़ था, ये मैंने कहा कि मैंने 10 रुपये और बोरो किए, बट मैंने कहा 5 रुपये जो है मैंने या 15 रुपये जो मैंने एक्सेस रिजर्व रखे हुए थे। तो ये मुझे बेसिकली प्रोसेस बता रहा है कि कैसे ये पैसा मेरा मनी के कन्वर्ट बन रहा है। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं। अगर C बढ़ेगा तो आपका मनी सप्लाई जो हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, मान लो पहले मैं 100 रुपये में से अब मैं 70 की जगह 80 रुपये अपने पास कैश में रखता हूँ। अगर मैं 80 रुपये कैश में रखता हूँ तो मैं डिपॉजिट तो 20 रुपये कर रहा हूँ, तो बैंक की एबिलिटी टू क्रिएट मोर मनी आउट ऑफ इट इज़ कम, तो इसीलिए मनी सप्लाई जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ओवरऑल मनी सप्लाई। क्योंकि ये अगर ये चीज़ अपने, और ये गलती है यहाँ पर, ये स्मॉल सी होना चाहिए भाई दी, ठीक है। तो ये आपका बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई आपका कम हो जाएगा, इनफैक्ट मनी मल्टीप्लायर भी आपका कम हो जाएगा अगर आपका C बढ़ गया तो, ठीक है। साथ में ये भी लिख सकते हो मनी मल्टीप्लायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर भी कम हो गया। अगर आपका T बढ़ जाए, ठीक है, एक्चुअली में अगर आप दिमाग लगाओ तो T बढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों, अगर T बढ़ जाए तो आप क्या कह रहे हो, मेरे पास ये 30 रुपये थे, इसमें से 20 रुपये मैं रख रहा था डिमांड डिपॉजिट, 10 रुपये रख रहा था टाइम डिपॉजिट। अगर मैंने कहा कि मैं इसको 10 रुपये कर देता हूँ, इसको 20 रुपये कर देता हूँ, है तो रिजर्व आपके जो डिपॉजिट्स जो हैं वो तो है तो 30 रुपये ही, उस 30 रुपये का 3 रुपये तो आप वो रखोगे। एक्चुअली में कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर इसने एक्सपेंशन इसलिए दिखाया क्योंकि इसने कहा कि ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर ओनली अज्यूमिंग रिजर्व रेशो फॉर टाइम डिपॉजिट्स आर लोअर दैन डिमांड डिपॉजिट। तो उसने पहले कह दिया कि अगर इसका आर जो होगा, अगर हम अलग अलग आर मान ले, इसका आर कम होगा और इसका आर ज़्यादा होगा, तो येस इन दैट केस आपका मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा और आपका क्या कहते हैं एक्सपेंशन भी हो जाएगा मनी सप्लाई में। बट अगर ऐसा नहीं है, तो अगर दोनों का सेम आर है तो देर विल बी नो चेंज इन दी दिस थिंग मनी सप्लाई इन दी मार्केट। देन एनहांसमेंट इन रिजर्व रेशो, ऑफ कोर्स एनहांसमेंट मैंने आपको बताया पहले 73 रुपीज़ से अगर 76 रुपीज़ हो जाए, बिकॉज आर आपका बढ़ गया तो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई हो जाएगा, ये आपका कम हो जाएगा, प्लस आपका मनी मल्टीप्लायर भी कम हो रहा है, ठीक है। देन राइज इन नॉन बोरोड रिजर्व्स, अगर आपका एच ही बढ़ जाए, अगर आपका एच बढ़ गया
तो एच किसी भी रीज़न की वजह से बढ़ गया तो आपका अगेन एक्सपेंशन हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर का। और सॉरी इसका मनी का इन द इकोनॉमी। अगर डिस्क्रिशनरी फाइनेंस बढ़ रहा है, ज़्यादा पैसे बोरो कर रहे हो तो ज़्यादा पैसे बोरो कर रहे हो तो ज़्यादा क्रिएट करोगे मनी, ज़्यादा मनी क्रिएट, ज़्यादा और ज़्यादा लेंडिंग दोगे तो अगेन एक्सपेंशन होगा। और अगर आप एक्सेस रिजर्व होल्ड करते हो, बैंक अपने पास बैठ के पैसा अपने रिजर्व में बैठ के बैठ जाता है कि नहीं भाई मैं तो पैसे किसी को आगे नहीं दूंगा, मैं एसएलआर के फॉर्म में, और सरकार कहती है कि आपको एसएलआर रखना है 21%, आप 27% रख के बैठे हुए हो, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई हम रिस्क नहीं ले रहे। अगर वो 27% है तो ये जो 6% जो बीच का डिफरेंस है ये लोन जा सकता था, बट लोन नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा मनी सप्लाई का इन द इकोनॉमी। ये जो है टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन इन जनरल, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल कि क्या होता है उसके केस में। अब मनी मल्टीप्लायर जो होता है इकोनॉमी के अंदर, अगर आप देखोगे वैसे मनी मल्टीप्लायर जो है कांस्टेंट रहेगा, बट अगर आप CD रेशो देखोगे, मैंने आपको ये बताया था CD रेशो जो है वो गिरती हुई जाएगी। क्यों गिरती हुई जाएगी? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता गया है, बाद में आगे जाके तो अगर आगे देखोगे तो और ज़्यादा गिर जाएगा फिनटेक की वजह से। कौन रखता है आज की डेट में पैसे? सारे कहते हैं कि मैं पेटीएम में रखूँगा पैसे। सो दिस इज़ द पॉइंट। अब एक क्रिटिक है, ठीक है, फाइनल पॉइंट फोक्स, आई थिंक यही फाइनल चीज़ है। हाँ बस लास्ट 5 मिनट्स। हाँ मैंने बोला था कि मैं 40 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, बट 1 घंटा लगा, बट एटलीस्ट यू गॉट टू नो दिस। अब ये क्रिटिक क्या है? ये क्रिटिक कहता है कि यार आपने तो इसको बड़ा मैकेनिकल तरीका बना दिया। आपने बेसिकली बोल दिया कि मनी को कितना कितना वो आपको करना पड़ेगा, आप मनी को कितना काम करना पड़ेगा कि वो मनी सप्लाई बन जाए। तो आपने एक मैकेनिकल रिलेशनशिप बना दिया, एक बिहेवियरल रिलेशनशिप था ये, कि लोग कितना पैसा रखेंगे, डिपॉजिट्स कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये सारी चीज़ों को छोड़ के आपने पूरे के पूरे एक्सरसाइज को आपने कह दिया कि दिस इज़ अ वेरी मैकेनिकल अप्रोच। अब कंट्रोवर्सीज यहाँ पर क्या है? डिवीजन, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरिस्ट एंड नॉन मॉनेटरिस्ट। अब क्या क्या वो है, मॉनेटरिस्ट जो है वो कहते हैं कि मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो है दे कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टॉक ऑफ मनी, कि बेसिकली कितना अकाउंट, कितना आपका पैसा इकोनॉमी में रहेगा, ये आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। नॉन मॉनेटरिस्ट ऑफन क्वेश्चन द फीजिबिलिटी ऑफ सच एक्सरसाइज। वो कहते हैं कि भाई इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मॉनेटरिस्ट एंड नॉन मॉनेटरिस्ट। अब क्या क्या इश्यूज़ हैं? विच वेरिएबल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। अब इन सब में एक ही वेरिएबल है जो मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करता है एक्चुअली में, वो है आर। इफ सम ऑफ दीज वेरिएबल्स आर नॉट कंट्रोलेबल, कैन मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफसेट इन्फ्लुएंसेस ऑफ सच वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल अब करेंसी टू डिपॉजिट रेशो जो है वो आरबीआई के हाथ में नहीं है, वो तो डिपेंड करता है फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन कैसी है। बट अल्टीमेटली फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन अलाउ कौन कर रहा है? ये स्मॉल बैंक्स कौन लेके आया है? ये डिजिटल बैंक्स कौन लेके आया? ये वॉलेट्स कौन लेके आया? ये आरबीआई की परमिशन के बिना थोड़ा ना हुआ है। सो दैट मीन्स दे डू हैव सम कमांड ओवर दिस। अब आज की डेट में एक और चीज़ आ रही है, डिजिटल करेंसी, कि भाई अब आपका बिटकॉइन की तरह आपका ई-रूपी चलेगा। दैट इज़ ऑल्सो बीन डन बाय आरबीआई। सो दीज आर वेरिएबल्स दैट आर, ये वेरिएबल्स हैं ये एक्चुअली में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। देन are behavioral functions explaining these variables stable and predictable, क्योंकि ये एक्चुअली में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का ही सेक्शन का भी पार्ट है, बिहेवियरल मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो है। अब अमंग ऑल ऑफ दीज कौन सी चीज़ जो है फुली कंट्रोलेबल है? वो सिर्फ आर फुली कंट्रोलेबल है, क्योंकि CRR कितना होगा तो आरबीआई डिसाइड करेगा। ऑन द अदर हैंड करेंसी डिपॉजिट रेशो एंड टाइम डिपॉजिट रेशो रिफ्लेक्ट एसेट प्रेफरेंसेस, कि भाई किसको कौन सा एसेट चाहिए, मुझे कैश चाहिए, किसी को बैंक चाहिए, किसी को एफडी चाहिए। नाउ the currency demand ratio will also depend on income and interest rates, कि कितना इनकम है, कितना इंटरेस्ट रेट है मार्केट के अंदर, डिग्री ऑफ मोनेटाइजेशन, फाइनेंशियल वाइडनिंग कितनी है, फाइनेंशियल डीपनिंग कितनी है, जैसे मैंने आपको बोला फिनटेक की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई ये रेशो, और टाइम डिपॉजिट रेशो इंटरेस्ट रेट पे मैटर करेगा। सो नॉन मॉनेटरिस्ट क्या कहते हैं? that variables entering into the in the formulation are endogenous, depend on income, interest rate and other measures. अब the behavioral functions explaining these proximate determinants are unstable, कि बाकी सारी चीज़ें तो अनस्टेबल हैं,
सो द मॉनेटरी अथॉरिटी स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते. उनको नहीं पता कि कैसे करना है. उनको नहीं पता कि श्रीलंका जैसी कंट्री, पाकिस्तान जैसी कंट्री, उनको कोई आइडिया नहीं कि अगर कोई चीज़ ऊपर हो जाए तो उनको उसको कंट्रोल कैसे करना है. कि सपोज इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा लोग कैश मांग रहे हैं, उसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर पर और मनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको ऑफसेट कैसे करना है उनको पता ही नहीं है. सो इसीलिए वो कहते हैं कि मॉनेटरी अथॉरिटी स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव द नेसेसरी वेयर विद ऑल or policy instruments to offset impact of changes in these variable on money stock. अगर कोई चीज़ चेंज हो गई, सी चेंज हो गया, टी चेंज हो गया, तो उसको काउंटर कैसे करना है, ये नहीं होता. मॉनेटरिस्ट से कि हाँ यार मैं मानता हूँ कि रियल फैक्टर्स एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट क्या मनी मार्केट पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, मनी क्या कहते हैं, मनी इन द इकोनॉमी पे. Their argument is that behavioral patterns in public and banks are sufficiently stable. हमें पता है कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं as to permit monetary authority to control the money stock and therefore ये क्या कहते हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें हैं एंड अल्टीमेटली हम उसको एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली क्या कहते हैं, गुडहार्ट कहता है कि उसको एज अ वो करना चाहिए, बिहेवियरल करना क्या कहते हैं वो करना चाहिए. बट एक्चुअली में हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम उसको जस्ट लाइक इन लोगों ने कहा, क्या कहते हैं नॉन मॉनिटरिस्ट ने कहा, हम उसी तरीके से उसको ट्रीट करते हैं. बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें कंट्रोल नहीं है, हमें पता नहीं है कि कैसे इम्पैक्ट करेंगी. So this is how this particular chapter spans out. I have already marked this up for you. ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये मैं अपने पढ़ने के लिए मैं मार्क कर रहा था. I wanted to read something, so I was reading. ये आपके पोर्शन का पार्ट नहीं है. Now if you have any question you can let me know. Otherwise I will see you maybe tomorrow or day after, whenever it's possible. I'll see you in the class. Any doubts folks? I know 12 बजने वाले हैं. And I also need to wind up a lot of things. Any doubts? Everything okay? Chapter समझ में आ गया? ठीक है. This is a very important chapter. As I've told you, for any particular purpose, जो भी आपका पर्पस है, इस चैप्टर का वीडियो देख लेना, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा. आपको समझ में आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर क्या है और कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़, आपकी नेक्स्ट क्लास भी आई विल टेक ऑन दिस एंड देन आई विल टेक अ डेवलपमेंट क्लास. एंड ऑन द वीकेंड what I'll do is, there is another teacher from OP Jindal University. She's a junior of mine from Delhi school and she is a PhD from ISI, and she is currently teaching at OP Jindal University. So she will be taking one session on I think she's going to take it on development, और एक और she will be taking on micro, वो आपके juniors के लिए है. ठीक है. सो I'll ask her if she wants to take one on environmental as well, तो वो environment पे भी she'll take a lecture. And this is about this particular thing. And one last thing that I want to say is, just next day to your exam, so we'll have all these sessions now and I'll put them on the website, I'll put them on YouTube. On the last day of your exam, for example, last day क्या है आपका एग्जाम्स का folks? what is आपके एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं? 5th June. So 6th June we will have a session in Rajendra Nagar, old Rajendra Nagar, for people who आपका जो भी आपका career goal है. So we will take a session on 6th of June. The details will be there in the inter-college coordination group of Econers, and we will take a session. Both me and Komal will take it. We will also have it online. But offline आओगे तो बहुत it will be very beneficial to you, whether you're going for masters, how to deal with masters at JNU, D School or ISI. So I can tell you about D School, she can tell you about ISI. And then especially if you're preparing for any kind of competitive exams, RBI, Grade B, IES or UPSC, economics optional, how has it been so successful, how you can diversify your options. So we'll talk about that, even your PhD options. So that will be one session for everything, with respect to your UPSC career or your future in academics or non-academics. So you can attend that session. Again, it will be at Mitras IS. So you can see how you can probably shape up your career with us. So thank you very much. I will see you tomorrow or day after at same time, folks. Bye bye.